A very, very warm welcome to each one of you, and thank you very much for connecting today. And so on this occasion for Women's Division Week, we have wonderful speakers with all of us over here. We are very fortunate to have the next session. Yes, I request everyone to please put your mute yourself. Thank you. So Ignited Minds by PHF is very happy to announce this learning bonanza from all the mentors over here under the mentorship of Dr. Liaquat Namole and in collaboration with HSH under the mentorship of Dr. Ashok Avadia. We present to you this learning platform. Today we have a wonderful speaker with us, Dr. Shobha Shah ma'am. So just to introduce her, she's practicing homeopathy since last 32 years, and she's the content editor of NJH, that is National Journal of Homeopathy, has shared over 100 cases and articles in National Journal for the last 17 years. She has been a speaker at many seminars and has got a core interest in treating deep pathological cases. So we are very fortunate to have you, ma'am, over here. So please welcome Dr. Shobha with a big round of applause. You can unmute and clap for her. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome. Over to you, Shobha, ma'am. Welcome, Shobha. How are you? Shobha, madam, how are you? Best. Thank you very much, Liaquat sir. Namaste. Really very happy to be also at this platform, live on the platform, at least of Zoom. It's really a pleasure wonderful to see you here, Shobha. Welcome. Yes, sir. We are. And I'm sure you're going to rock today. Yes, sir. Thank you so much. Thank you so much. It's really wonderful thing. That is what I was talking to Dr. Ashok sir also just before you joined. You all are doing real wonderful job, to integrate everyone and give the platform. हम सब treat करते हैं और सब homeopaths के पास अच्छे से successful results हैं. Because homeopathy itself has a lot of potential to produce miraculous results. But then सबको एक platform देना, उनको platform पे इकट्ठा करना, एंड होम्योपैथी को मीनिंग एटलीस्ट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन या जो जूनियर लेवल्स पे हैं उन लोगों को एक मोटिवेट करना कि ओके ये भी पॉसिबल है तो that is really wonderful. The job that you both are doing, really I'm grateful to both of you, Dr. Ashok Avadia sir, Dr. Liaquat sir. और भी अपना जो हम लोग टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कुछ सीख रहे हैं माइंड मेथड के लिए. ऑल दिस डॉक्टर मान सर, डॉक्टर नीलम मैम, all the groups, the ASRH, SHS, the Ignited Minds, really wonderful things that you are doing for homeopathy. So that is what I am really thankful to and grateful to you all for. All pleasure is mine, Shobha. Thank you. Thank you. Thank you, bhai. We want to hear you now. Okay. Please start. Okay. Thank you, Shobha. So, yeah, I will start with my this thing. I'll start with my screen share. I've prepared a PPT. मनीषा या मानसी मुझे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करने को को-होस्ट वगैरह बना दो so that I'll be able to screen share. Okay, ma'am. हाँ, हुआ शायद I think so. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Okay. तो फाइनल मीनिंग हम सब होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं तो as I said we all produce a very good results. All the homeopaths are really able to produce good results. But one thing which I feel which is very important when we want to produce the good result is we have to understand what is the key to prescribe accurately, and that is what I would try to try and make an effort to share that through a case, because finally जो cases से हम सीख पाते हैं, that is the best learning. So I would start my sharing by paying my gratitude to our master Dr. Hanuman sir,
मैंने जैसे बताया डॉक्टर अवधिया सर और डॉक्टर लियाकत सर. At the same time, I would like to pay my gratitude to all my teachers of homeopathy. You know, starting from my base, जो ICR से चालू हुआ, वहाँ से after ICR, predictive homeopathy, all my teachers at NJH, National Journal of Homeopathy, where I am associated since many years. उसके बाद में what made me more and more interested was the mind rubrics method. तो जहाँ पे what I learned from Dr. Sehgal, Dr. Milindra sirs का HHF group है, and all the groups of mind rubrics method on the Telegram groups. So I'm really grateful to each one of you, you know, who has been a mediator in my learning of mind rubrics. And I really feel being very blessed being a homeopath. The way that we are seeing results with homeopathy, I really feel it's a wonderful science which is very close to the nature, and what we are doing is something very holistic. With this, I would directly go to the case and start with the case. So this is a case that I'm going to share today. It is a case of a male who is 37 years old, and he was suffering from ankylosing spondylitis. So he is having a severe arthritis, and what happened was that his wife called up. And wife said कि her husband was hospitalized for this severe arthritis just few days ago. So wife wanted to know कि अभी उसको, because he had a severe arthritis, so how to bring him to clinic. क्या कर सकते हैं, उसको clinic लाना पड़ेगा या और कुछ ways में आप help कर सकते हैं. Because the way she described कि his pains were so severe that wife had to literally lift his legs, you know, and keep it on the bed. Or she had to help him to make him stand up from the bed, take him to the toilet. मतलब इतना ज्यादा उसका arthritis था, इतना ज्यादा उसको pains थे कि it was making him incapacitated and काफी difficulty हो रही थी उसको. He was unable to move even to the toilet. It was getting very difficult, as if just to walk for the few steps also. So how to bring him to clinic? That was the question of the wife. उसको थोड़ा सा motivate किया, explain किया कि it would be better if you can bring him to clinic. Otherwise online कर सकते हैं, but it is better. So the patient, wife brought the patient to the clinic. See, our case taking starts from the first interaction with the patient or the relative. तो ये ऐसा हुआ कि ये फोन पे हमने कुछ information लिया. After that, as soon as I reached clinic, what happened and what I saw was कि जब वाइफ ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो यू हैव सर्टेन थिंग इन योर माइंड एंड यू आर एक्सपेक्टिंग सम टाइप ऑफ पेशेंट्स कि ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसा दिमाग में कुछ तो आपके आता है. बिकॉज शी हैड द वे शी हैड डिस्क्राइब्ड हिज पेन्स एंड नॉट एबल टू वॉक और नॉट एबल टू ब्रिंग हिम टू क्लिनिक ऐसे. एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट पेशेंट वाज सिटिंग इन द वेटिंग रूम, एंड व्हेन आई एंटर्ड द क्लिनिक आई वाज रियली सरप्राइज्ड. यू नो व्हाई आई वाज सरप्राइज्ड? बिकॉज he was sitting in the waiting room and he greeted me with a big smile on his face. Like, this was very surprising, and I was wondering whether he is the same patient whom wife was talking about. Meaning एक question आता है. And I would really say कि ये जो surprises आते हैं, कुछ ऐसा हमको कुछ अजीब लगता है, ये सब चीज हमको एज ए होम्योपैथ हमारे माइंड में रजिस्टर करके रखना है. So then after that, when he entered into the cabin, so he was finding it very difficult. ऐसे उसका gait भी था, that was not a normal gait. He was like walking ऐसे बहुत ही slow gait, and then थोड़ा ऐसे limp हो के चल के he entered into the clinic. Because and he complained of that he had lot of stiffness and restriction of all the movements of the joints. उसका he had a difficulty of his neck, back, both the extremities, the upper extremities, lower extremities. He tried to lift his legs and showed कि वो इससे आगे ऊपर उसके हाथ नहीं उठ रहे थे, meaning not above the level of the chest. He could not lift beyond this. Then and उसका walking का जो difficulty था वो तो दिख ही रहा था, तो पता चल रहा था. And he said कि even if he has to go to the toilet or he has to go to drink water, he was finding it very difficult. And he said he himself said that he is diagnosed HLA-B27 positive. He was hospitalized for the same thing before a few days, and he's been discharged now.
So this is what is his MRI report of the lumbosacral spine. I would just highlight this report, its conclusion of it, and it says that he has the changes of bilateral acute inflammatory sacroiliitis, and there is a diffuse posterior bulge at the level of L5S1 disc effacing epidural fat. Okay, and also there is a bulge at the level of L4, L5. And this disc which is intending the thecal sac, and also mild facetal arthropathy was seen at both the levels. Okay, so when I saw and when I started talking to him and started with the case, so I asked him, okay, then so what was the change in your behavior, or what had happened, what was the change in you, when this pains have started, during the pains and all. So he said little anger, but nothing much. पहले तो थोड़ा सोचा भी उसने, but then he said nothing else, ऐसा और कुछ नहीं. I was also surprised नहीं, but ये लोग जब भी मुझे force करते हैं to do the exercises और physiotherapy वगैरह करने के लिए, that time he doesn't like to do that because of the pain, so he gets little angry, but nothing much. So like that again came to me a little surprising, कि there is no much other change in him. So then I tried to understand कि okay, so then what was the stress like, कि क्या हुआ था इसके पहले कि इतना stressful जो था जिसने आपको इतना incapacitate कर दिया. So he said कि initially तो he said कि he has a business of a glass business में है वो. They are manufacturing the glasses and supplying the glasses. Not manufacturing. He is into the glass business where he is supplying the glasses to the other customers. So initially he told me कि because of the work, because he had started he wanted to do one business in partnership with another person at Goa. तो उसका गोवा के लिए मुंबई to Goa he had to go up and down, उसका थोड़ा traveling होता था. So possibly he said because of that travel, maybe I had थोड़ा ज्यादा मेरा travel हुआ गोवा जाने से, तो उसकी वजह से मुझे हुआ. Wife was saying कि maybe because उसका वहां पे कुछ खाना वगैरह ऐसा हेल्दी नहीं होता था, प्रॉपर नहीं हुआ था, एंड इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स में भी उसकी वजह से हुआ. बट आई वाज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड बिकॉज सी फ्रेंड्स, वी हैव ऑलवेज सीन दैट जो पैथोलॉजी आता है कोई भी पेशेंट्स को, दैट पैथोलॉजी, the depth of that pathology and the depth of the conflict that the patient passes is always proportional, directly proportional. So just eating irregularities or just the traveling difficulties से इतना आपको ankylosing spondylitis नहीं आएगा. The type of pathology which is there, तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना. And if you are not convinced as a homeopath, you need to ask him till you are convinced. So then I told, or any other stress that you are facing, and then he said कि हाँ शायद. Then he talked about कि okay, मेरा एक main stress था payment का, कि मेरे जो clients थे, they were not making me the payments on time and they were not repaying it to me. And so then I directly asked him कि कुछ financial loss वगैरह हुआ है क्या? Then he said हाँ, I lost 50 lakh rupees before 5 years into the business. He had to, meaning receive it from a builder. एक builder का बड़ा काम लिया था उन्होंने, where he supplied the glasses, but he didn't get it back. वो business था, he literally raised the hands and he didn't pay his dues. So the patient suffered the 50 lakh rupees का losses at that time, and that was the very big stress. तो अभी ऐसा हुआ कि on the basis of this receivable money he bought a flat. अभी पूरा पैसा आया नहीं था, but he knew कि okay, by Diwali he is going to get back this 50 lakh rupees. So on that basis he already bought and booked a flat, and he already bought. So during that buying of that flat, what had happened is that he took some loan. He took loan from the society, from some people, and also from his father-in-law. His father-in-law helped him to take the loan from the society, and he took the loan, and after taking the loan he bought a house. But अभी ऐसा हुआ कि once this जो businessman था, the other builder जो था, जिसने who raised his hands and he refused to pay back, तो ये patient के calculation सब fail हो गए.
And ऐसा हो गया कि he literally had, meaning nothing now. He had already bought the flat. He had already took money from the other people and the loans which he had to repay. तो अभी उसको बहुत stress आया कि he couldn't repay the stress, कि how will he repay. And as so then again there was one question in my mind कि this loss had happened to him before 5 years. तो अभी उसको ये पैथोलॉजी क्यों आया इतना? What had happened before 5 years? So he said that time he was okay because वो टाइम पे ऐसा था कि he already had some businesses also from which he earned some money, and also he had some other things, कुछ orders थे, and he had some gold. Yes, तो वो gold से भी उसने कुछ sell off कर दिया and he repaid some of the loan, जो कुछ भी लिया था उसमें से तो थोड़ा जो repay कर दिया, तो at least the people were quiet for some time. But अभी ऐसे होने लगा, as the time was passing by, what was happening, his business was not doing very well. तो business भी slow down हो गया था. So by that he couldn't repay, and by not repaying, so there was a lot of stress because everyone started coming. The bank people started coming to his home. The other people from whom he had taken the loan, they started calling him up again and again. Father-in-law को भी वो लोग, father-in-law had also borrowed the money from the society. So those society people were putting pressure on father-in-law, and father-in-law was again putting pressure on the patient. And he was also calling him up repeatedly and asking him कि he has to repay the money. So now the pressure started building up on his mind, and he thought कि he had to repay, but he was not able to repay from the business that he was doing because it was not running that well. It had slowed down. And what was happening is कि in his family there were 3 people: he himself, his wife, and his daughter. So wife also is a beautician, and his wife is also having a good तो wife का भी वो beautician है, उसका parlor is running quite okay, like not bad. So that what happened is कि wife started repaying little bit, but then father-in-law था, उनको भी वो बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता था. उनको लगता था कि अरे why are you not repaying? You have taken the loan, and why my daughter has to repay, and why you are not taking up any responsibility? Why are you not doing this? And so he also used to tell him, father-in-law बोलते थे उनको, तो उस patient को थोड़ा सा उसका pressure आता था करके. Also what used to happen is that the way I said ki the people would call, then some people would come to their home to demand the money, and this wife would be taking her some teaching classes of her beauty thing at her home. तो wife को भी वो अच्छा नहीं लगता था, and wife used to feel it very bad and embarrassing कि when the people used to come to her house in front of her students, when the people or the bank wala आएगा or some people will come and stand on her door for the money. So then I asked wife ki okay, then our patient also that okay, so then what was the effect on the patient of this stress or of ये जो कुछ भी उसका ये emotionally उसको क्या difficulties हुई. So wife immediately said कि there was no effect on him. She said he would feel bad for a day and he would forget it the next day. वो next day पे जहाँ था वहाँ वापस आके खड़ा रह जाता था, as if like back to square one. 1-2 दिन में उसको थोड़ा सा stress लगता है और he would feel bad for 1-2 दिन, again he would come back there only. And what wife said, अगर उसने seriously लिया होता तो he would have repaid most of it till now, but he did not take it seriously, and he has no control over spending money. Whatever his earnings are, he spends on buying the things, his branded things he buys, and that he buys branded, buys clothes, watches, shoes, perfumes, ये सब वो branded he used to buy. Even though there is a no need, he would buy that, and he doesn't save any of this. तो patient को पूछा कि is it true what wife is saying? So he said हाँ है. उसको बोला क्यों ऐसे करते हो? तो बोले कि डॉक्टर मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है, since childhood like I have lived the life कि मुझे ये सब चीजों का शौक है, तो मैं ये खरीद लेता हूँ, तो मेरा ये इस पे कंट्रोल नहीं रहता है और मैं खरीद लेता हूँ. एंड वाइफ सेड कि बहुत दिनों तक मुझे समझता भी नहीं है कि इसने कुछ बाय किया है. What happens is he buys online
और या फिर वो ऑनलाइन और ऑफलाइन. दिस इज जस्ट बिफोर दिस, द केस इज ऑफ अराउंड 2019 का है, एंड ऑफ 2019, सितंबर 2019. तो वो टाइम पे इवन ऑफलाइन सब था ही, तो वो जाता था, he would buy online और shops में से, and what he would do is he will hide it in the shop and he would not bring it home. तो वाइफ को रियलाइज ही नहीं होता था कि अरे ये इसने कुछ बाय किया है. इट इज ओनली लेटर ऑन, जब भी वो घर पे लाके कभी कहीं पे छुपा देगा, या कभी वो whenever he will wear those clothes or something, that time wife will understand कि अरे ये सब कहाँ से आया. तो wife like and wife also complained some other thing is कि he doesn't care for me at all. वो अपने लिए सब कुछ करता है, मगर मेरे लिए वो कुछ नहीं करता है, ना तो मेरे लिए कुछ खरीदता है. He doesn't care for me, he doesn't care for my daughter, he doesn't even care for our health, he doesn't take us to doctors when we are not well. अरे वो बोलती है कि अरे मेरी डॉटर जब भी घर पे भी आती है स्कूल से, तो मुझे उसको बोलना पड़ता है कि अरे तू डॉटर से बात कर, उसका कुछ स्टडी का देख, यू आस्क हर समथिंग, टॉक टू हर समथिंग. जबकि he doesn't take interest in all this, even not even in daughter much. जबकि उनका लव मैरिज हुआ है. he is married since 11 years and it is his love marriage. But इतना उसका the way wife was saying was like कि he doesn't care for her much. At the same time wife also complained कि उसका मोबाइल भी आधा टाइम स्विच ऑफ ही रहता है. because वो जो all these people who are the creditors, they वो कॉल करते रहते हैं इसको. तो that is why to avoid them, like वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखता है. मगर वाइफ बोलती है मगर डॉक्टर उसको इतना नहीं पता चलता है कि अगर मैंने उसको बोला है कि डॉटर, अगर मैं मेरे ऑर्डर पे गई हूँ, कहीं ब्यूटी पार्लर के ऑर्डर पे गई हूँ, और उसको अगर बोला है मैंने कि अगर डॉटर आएगी, उसको स्कूल बस से लेने जाना है, तो उसको अगर मुझे कुछ मैसेज देना है, कुछ करना है, तो he is not available on phone. Hello, madam. Sorry to interrupt you. Yes. I request everyone to please be on mute and please switch off your videos. Yeah. Please, I request you, please. Yeah, madam, you can continue. Sorry. Okay. No, it's okay. It's okay. No problem. So, what is happening is that the wife is complaining that he as a father is also not available for my daughter. Neither he is talking to her, neither he is taking her studies. But अरे कभी मुझे उसकी जरूरत होगी, कह रहे उसको बस उससे को लेके आना है, बस में से स्कूल बस आएगी, उसको लेके आना है, या उसको मुझे कुछ मैसेज देना है, he is not available, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है. तो that time also complaint was there, and due to this, like almost wife was frustrated with this person, and she was like almost in the tears and crying, and she was saying I'm tired of this person now, and our relationship is on the verge of divorce. तो ये जब लास्ट का बात हुआ, वो पेशेंट था, he was listening हो रहा है, but overall अगर मैं बताऊं कि what was the observation, I would have loved to share the video case of this patient, but then because of अपना जो सोशल मीडिया पे हम डालेंगे, और उसके जो हमको पेशेंट की प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करनी है, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट show you the patient. But I really want to see कि you must understand the patient through whatever is my description, तो ये patient throughout the interview also, जो मैंने बताया, when I entered the clinic, he greeted me with a big smile. So after that, when he entered the clinic and when he was giving all the information, और ये जब उसका case taking हुआ, वो time पे भी वो काफी relax था. Although he had difficulty, बहुत difficulty से आके बैठा, but एक बार वो बैठ गया अपनी chair में, then he was very much relaxed and he was smiling and laughing during the interview, like मतलब ऐसा ये बंदा था. So one thing, because like I have solved this case on the basis of the mind rubrics method, I would really like to go ahead with this only. And Manisha, Mansi, I would like to take some interactions here of the group ki, okay, what have they understood about the patient, or what they would like to tell about the patient. Yes, ma'am, definitely. Hello. Yes. Good afternoon, ma'am. There is no sense of responsibility in the person. He is not at all interested in what, as a husband or as a father,
he is Yes. supposed to do. Yes. And Very good. Very good. Hmm. and ma'am, he's very selfish also. He's just thinking about himself, not at all worried about his financial status or what the other person at the home need. Hmm. He's not at all worried about all those things. Yes. Very good. ये selfishness है. Yeah, He's definitely, the way you are saying, yeah, he's not taking up responsibility, not meaning, not definitely not behaving like a responsible person. Yes, absolutely agree. he is. He doesn't understand what is responsibility to be taken. Exactly. Very good. Very good. Yeah. Yes. He So doesn't know what is responsibility to be taken as a husband or as a father. And once he's supposed to pay money, still he is spending money. So Yes. that is, he doesn't understand. The calculations are not good. He's imbecile, whatever you are. I'll have to search then. very good. Very good. Very good. नहीं, very good. You are perfect. Yeah, Perfect. ma'am. So that is why you are feeling कि वो उसका थोड़ा सा selfish attitude जैसा है, right? हाँ, Right. मतलब Right. एक बच्चा कैसे अपने लिए करता है, ये इतना मगर बड़ा selfish- मैरिड मैन, Exactly. मैरिड मैन होके भी इसको समझता नहीं है. बट अगर सेल्फिश रहेगा ना तो उसको पता भी रहता है कि ये मैं मेरी सेल्फिश मोटिव हाँ. के लिए करता हूँ. इसको ये कुछ Hello, मालूम ma'am. नहीं है, इसका दिमाग कम है. मैम हेलो. हेलो Yes. मैम, वो इसमें ये भी जो मैंने नोटिस किया मैम, ये अपने अम्यूजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता. हाँ. जो Yes. जो मतलब जो जिसमें इसको एंजॉयमेंट मिलता है, लाइक बचपन से ही जो इसकी अपब्रिंगिंग हुई है एंजॉयमेंट की, अपना अपने पे मनी स्पेंड करना, तो अपने अम्यूजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ये. काइंड ऑफ की इंडिफरेंस है और दूसरों के लिए बस अपने बारे में. वो सेल्फिश में भी आ सकता है, बट जो मेरे को लगा कि अम्यूजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता अपने. अम्यूजमेंट मतलब उसका जो अम्यूजमेंट, हाँ, what he is find enjoyable, like what he is I mean जो उसको लग रहा है कि मेरे को जिसमें उसको आनंद मिल रहा है. कौन सी बात? जैसे मैम अपने लाइक ब्रांड्स, अपने पसंद, जो भी अपना स्पेंडिंग करना, अपने पे स्पेंड करना. और अगर जैसे उसको वो लेना था जो जिसके लिए उसने लोन लिया था, बस पहले मैं ले लेता हूँ, कुछ सोचा नहीं कि बाद में क्या. उसमें कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी भी नहीं है कि आगे का डेंजर जान मतलब पता कर सके, वो वाली एबिलिटी भी नहीं है. एकदम से उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली पहले खरीद लिया, ये नहीं सोचा अगर आया नहीं आया इन केस. तो ये भी है इसमें काइंड ऑफ की नमनेस भी है माइंड की. इसे पता ही नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, डेंजर का कोई रिकग्निशन ही नहीं है इसको आगे के. और अगर क्रेडिटर्स के वो भी आ रहे हैं, उसमें एस्केप अटेम्प्ट भी है, वो स्विच ऑफ ही कर दे रहा है फोन कि ठीक है मेरे को क्या परवाह, मुझे कोई परवाह नहीं है, इस तरह से जो मुझे लगा. वेरी गुड. तो वो एस्केप अटेम्प्ट कर रहा है कि वो मतलब जैसे एक बताया परवाह नहीं है. केयरलेस भी. एग्जैक्टली, वो केयरलेसनेस है. वेरी गुड. हाँ, केयरलेस. मैडम, वाइफ डिवोर्स का बात करी तो भी ये हंस रहा है, इसको कुछ अक्कल ही नहीं है. राइट. वाइफ इतनी टॉर्चर्ड हो गई इसके बिहेवियर से, एंड ही इज जस्ट स्माइलिंग. यस. समझ में नहीं आता इसको कि व्हाट सीरियस लेवल द रिलेशनशिप्स आर गोइंग ऑन, एंड ही नीड्स टू टेक सम केयर मैम वो अबाउट इट. कहते हैं ना, मैम वो कहते हैं ना चिकना घड़ा टाइप्स. हाँ. क्या इसके लिए क्या रुब्रिक लेंगे कुछ? मैम इसके लिए मैम इंडिफरेंस टू इम्बेसिलिटी. लगता है मुझे ये कितना अभी इसका लव मैरिज है, द वे यू पीपल आर सेइंग, इसका अटैचमेंट कितना है इसकी वाइफ के साथ में, इसकी डॉटर के साथ में? हमको जो डेटा मिल रहा है, जो वाइफ अपना मतलब बता रही है, और वो पेशेंट भी जो बता रहा है, क्या मिल रहा है मतलब अपने को? जैसे वो सेल्फिश का फील आ रहा है. इसको समझता ही नहीं है कि एक मैरिड मैन का क्या ड्यूटी रहता है. एकदम तो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको नहीं समझ में आ रहा है.
This is absolutely तो perfect. you know. imbecility इम्बेसाइल है ये, इम्बेसाइल है। उसको कपड़ा अपने खुद के लिए तो सब खरीदने का सब पता चलता है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, कहाँ छुपा के रखना है, फिर वापस घर पे कभी लाना है, ये सब तो उसको पता चलता है। ये अगर इम्बेसाइल है तो ये सब पता चलता है उसको। मैम डिटैच ले सकते हैं, डिटैच्ड बोल सकते हो, ओके। डिटैच्ड फ्रॉम मतलब अपने हिसाब से चल रहा है, जो करना है वो करता है, जो नहीं करना है उसकी किसी कोई की पड़ी पड़ी नहीं है ना, है। उसको खुद की के पड़ी है। हिसाब से चलने वाला है। यस यस यस, वेरी गुड। एब्सेंट माइंडेड इनएडवर्टेंस भी ले सकते हैं कि जहाँ ध्यान देना चाहिए वहां नहीं दे रहा है, और ध्यान है उसको समझ नहीं रहा। एब्सेंट माइंडेड में क्या होता है ना कि जब भी आप वो सिचुएशन में होके भी आप एब्सेंट माइंडेड हो जाते हो। मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अगर मैं एब्सेंट माइंड में, जैसे मैं ब्लैंक हो जाती हूँ और मैं एब्सेंट माइंड मतलब वहां पे से एब्सेंट हो जाती हूँ मेंटली। ये बंदा वहां से एब्सेंट नहीं हो रहा है कहीं से भी, ये पर्पसफुली वैसे बिहेव करता है, he knows what he is doing। नहीं, मगर अगर पर्पसफुली बिहेव करेगा, हमको पेशेंट्स जब भी आते हैं ये एब्सेंट माइंडेडनेस वाले पेशेंट्स भी, तभी उसके रिलेटिव्स या पेशेंट पे से भी अपने को समझता है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सब रूब्रिक्स जो है बहुत नजदीक नजदीक की अगर रूब्रिक्स आएंगे, अगर हमने एक की जगह दूसरे रूब्रिक्स ले लिए तो हम पूरी अलग टोटालिटी में चले जाएंगे। हाँ मैम, बराबर एंड है। हम मतलब जो एक अपना गोल है उसके नजदीक नहीं जा पाएंगे। So that is why we have to be very this thing, about what exactly what is there in the patient and what we are understanding and what rubric that we are taking for it. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग बताया ये काफी अच्छा है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर मतलब नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि वो टाइप का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दिस एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसको एवर्जन है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता ही नहीं है, समझता ही नहीं क्या? मैम एक रूब्रिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनएबिलिटी टू टेक। ओके, ऐसा लगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की केपेबल ही नहीं है। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरे हिसाब से उसको लेना नहीं है, एवर्जन है, क्योंकि उसको बारे में सोचना भी नहीं है कि उसको वो करना चाहिए। जब बाकी सब कर सकते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी कर ही सकता है ना, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और स्टूपिडली स्माइल भी कर रहा है, आप जैसे लिखा है इतना डिवोर्स तक की बात करती है वाइफ, तो भी इसको कुछ पड़ी नहीं है वो बारे में, अपनी इमेज की क्या लोग बोलते हैं उसको। ऐसा ससुर बोल, वाइफ पैसे पे कर रही है, इसको पे करना चाहिए, वो भी उसको कुछ अक्ल नहीं है कि इज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट दोस थिंग्स कि उसको इतना सारा पैसा पे करना है, वो अपने पे ही चालू है सब। May I know your name please? Myself, Madam, I'm Dr. Dolly Doshi. Dr. Dolly Doshi. Dolly Doshi, okay. Yes, Dr. Doshi, आप एकदम वाइफ के रोल में पूरे गए हुए हैं अभी, एंड एज ए वाइफ के रोल में जाके मीनिंग यू हैव रियली, मतलब आई अंडरस्टैंड कि एज ए वाइफ ये पेशेंट अगर हस्बैंड होगा तो कितना गुस्सा आएगा। you are also finding the similar anger towards this patient कि नहीं ये, बट हमको एज ए फिजिशियन ये सब बैलेंस करके चलना है। वी आर इन द चेयर ऑफ फिजिशियन when the नहीं, patient because you said ना कि wife is paying the debt, definitely है, ये भी नहीं पे कर रहा है, he is spending money, so yes. that is somewhere not allowed as Yes. इस हिसाब से। yes yes, नहीं ये सही है, just I am just telling you as a word of caution, हाँ, nothing, don't take it personally, don't take it hard, nothing like that, yeah ma'am। बस कि हमको वो देख के चलना है और कुछ नहीं। ओके ठीक है, इसके अलावा और about what else about the patient? मैम फ्लोरिक improvident, सॉरी क्या बताया? फ्लोरिक एसिड का फील आ रहा है मैम। ओके, क्यों? क्योंकि होम डिजायर टू लीव होम वाला फील आ रहा है, अपना करना है और बाकियों का कुछ भी पड़ी नहीं है। हाँ ओके अपना खुद का करना है, बाकी का नहीं।
Ma'am, there is one rubric also absorbed in the fulfillment of his sexual desire. मतलब अपनी ही desires, अपनी जिस चीज में उसे मजा आता है, उसमें वो totally involved है. बाकी के लिए indifferent है मतलब. हाँ, okay, very good, very good. ठीक है. What else? What else? Which other qualities of patient? बाकी के पेशेंट के बारे में, पेशेंट की क्वालिटीज के बारे में. मैडम इंडिफरेंस टू फैमिली लग रहा है. वो बेटी के बारे में भी सोचता नहीं है, ना कि वाइफ के बारे में. एग्जैक्टली. ओके, ठीक है. मैम पेन को लेकर भी वो वैसा ही है, क्योंकि उसके ड्यूरिंग पेन भी वो आपको ग्रेट भी किया जब आप गए. हाँ. और स्माइल किया. और आपने पूछा कि इतने पेन में सर मैम इरिटेबिलिटी होगी, उसको बिल्कुल नहीं. हाँ. उसने ये भी बोला कि नहीं मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. मतलब ड्यूरिंग नेचर आपने पूछा कि क्या चेंज होता है ड्यूरिंग सफरिंग. राइट. तो ये भी नोटिस करने वाली बात है कि उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा है. Okay. उतना नहीं मतलब. हाँ. तो ये क्या है? ये जो स्माइल है ये क्या है? मैडम एक बात बोलूं, ये क्या वाइफ के सामने ज्यादा दिखाता है पेन है, आपके सामने आया तो उसको पेन ही नहीं था इतना. हाँ. घर तो पे क्या जब करता है ये? वाइफ कंप्लेन करती थी कि हिल भी नहीं सकता है, टॉयलेट जाना भी मुश्किल है उसके लिए, और आपके पास आया तो ही वाज लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल. तो ये फेनिंग है कि नहीं है? हमको देखना तो पड़ेगा ना. हमारे हाँ, रूब्रिक्स नहीं तो हमारे हाँ. रेमेडीज रूब्रिक्स वहां पहुंचने के लिए हमको देखना पड़ेगा ना. हम कैसे कैसे मतलब ये एटलीस्ट हमको ये तो समझना है वेदर दिस इज पेनिंग और दिस इज नॉट पेनिंग. ओके, व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फिजिशियन के माइंड में आना तो बहुत जरूरी है, आना ही चाहिए. ये पेनिंग है कि वो वाइफ के सामने वो जो कर रहा था, या जो उसको वाइफ ने हमने बताया, या वो वाइफ गलत बोल रही, झूठ बोल रही थी, या ये पेशेंट मतलब झूठ बोल रहा है. हाँ, कौन झूठा है ढूंढना पड़ेगा. हाँ. हाँ. तो उसके लिए हमारे पास जो भी डेटा है अभी, उस पे से अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आए कि ये वाइफ जो बोल रही थी दैट वाज नॉट राइट, और वेदर ये पेशेंट जो बोल रहा है वो फेन कर रहा है. कैसे समझ में आएगा हमको? मैडम रिपोर्ट के हिसाब से तो ही सफरिंग एक्चुअली. रिपोर्ट है हमारे पास में. हाँ. तो वो HLA B27 पॉजिटिव है, और उसके रिपोर्ट्स में एंकाइलोजिंग भी हमको दिख रहा है. राइट. तो उसको उसकी वो पैथोलॉजी तो है, दैट इज वन. और कहाँ से समझेगा हमको? वो पेशेंट जिस तरह से चल के, जब भी वो बैठा था वेटिंग रूम में भी बैठा था, उसने अच्छे से हंस के हमको स्माइल करके ग्रीट किया. और वो जब भी एंटर हुआ क्लिनिक में, मतलब क्लिनिक में नहीं, सॉरी कैबिन में, मतलब वेटिंग रूम से वो जब भी कैबिन तक आया, और कैबिन में आके वो एक बार बैठ गया, और बाद में जब इंटरव्यू चला तब तक तो लाइक एज ए फिजिशियन मैं भी भूल चुकी थी कि अरे इसको इतने पेन्स थे करके. बट वो जिस तरह से चल के अंदर आया, लाइक उसका जो गेट था वो काफी लिम्पिंग था, उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी. उसने बताया उसके हैंड्स की भी जो मूवमेंट थे, उसके सब दोनों शोल्डर्स, नेक, उसका बैक, उसकी जो हिप जॉइंट्स थे, और उसने और एक बताया था उसके लेफ्ट एंकल में काफी स्वेलिंग था, विच ही शोड एंड ऑन एग्जामिनेशन आल्सो आई सॉ. उसका जो राइट नी था वो काफी उसको पेन कर रहा था, लेफ्ट एंकल और राइट नी. और वो जब भी उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लिया और चेक एग्जामिन करने के लिए, दैट टाइम ही कुड हार्डली लिफ्ट हिज लेग, यू नो, और वो बहुत स्लो मूवमेंट में, तभी उसके फेस पे ऐसे उसको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इवन टू गेट अप फ्रॉम हिज चेयर, यू नो, ऐसे 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 करके वो ऐसे बहुत मुश्किल से वो ऐसे दोनों बाजू से चेयर पकड़ के धीरे 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 ऐसे खड़ा हुआ. Then he couldn't stand straight for few seconds. फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा बेंड था, फिर चला. So at least this tells us कि नहीं, उसको पैथोलॉजी डेफिनेटली है और उसमें पेन्स भी है. बट एक बार वो बैठ गया, कंफर्टेबल वो उसमें आ गया, देन वो वापस मतलब फिर वो पेन में हम लोग देखते हैं ना पेशेंट्स को, कुछ कुछ पेशेंट्स के फेस पे हमको पेन कंटिन्यूसली दिखता है, वो ये पेशेंट के फेस पे हमको कंटिन्यूस नहीं दिखता था. देन वो थोड़ा सा लाइट हो गया था, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, फिर वो स्माइल भी करता था, वो हंसता भी था. जैसे
मैं भूल गई, वो भी अपने पेन के बारे में शायद भूल जाता था। Are you getting the feel of the patient that I'm able to convey to you people? Yes, ma'am. Shobha, can I speak? Yes, sir. He seems like as if कोई नशा करके, जो नशेड़ी बच्चों का बिहेवियर होता है ना, हाँ, जो नशा करते हैं, हाँ, जिनको फैमिली से कुछ लेना देना होता नहीं है, जिनको रिप्रिमांड से भी कुछ लेना देना होता नहीं है, हाँ, जो घर बेच के गांजा चरस वगैरह पीते हैं ना, ये उनके जैसा फील आ रहा है मैंने। I think the remedy will be something like heroin or OPM or that sort. Right. Very I good, don't know. sir. I mean, just wanted to give the feel what I felt like, so that others also feel. Very good, sir. बराबर है, जैसे मतलब ट्रू, बट ये राइट, जब इसके अंदर मतलब वो नशे का ये नहीं था, जब वो था वो, बट हाँ, जिस तरह से इवन द अदर ग्रुप मेंबर्स आर सेइंग, वो अपने आप में ही मतलब उसको अपने आप से मतलब था, उसको दूसरों से मतलब नहीं था। Exactly. So Sensitive to insensitive, like, no? Sensitive and insensitive, both running together. and insensitive also. मैम एक ये रूब्रिक ये भी है ना, लाफिंग एंड रेप्रीमेंट्स, कि उसको डांट रहे हैं, उसको कुछ उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो वो हंस रहा है। हाँ, मगर यहाँ पे हम एज ए फिजिशियन उसको डांट नहीं रहे थे। उसकी वाइफ उसके बारे में बोल रही है ना कि उन्होंने मुझे हमें ऐसे तंग किया, हमारे बारे में केयर नहीं करते। वो टाइम पे वो जोर से नहीं हंस रहा था, बट वो इतना ठीक है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसने सुना। जब भी वाइफ ने इसके बारे में बताया ना कि वो सब लाके जब सब घर पे मतलब छुपा देता है, सब ऑनलाइन शॉपिंग इतनी सारी करता है, सेव नहीं करता है और ये सब, तभी आई हैड आस्क्ड हिम कि ये क्यों करते हो तुम, और आर यू एक्सेप्टिंग, ये वाइफ जो बोल रही है सच है या गलत है। तो उसने एक्सेप्ट ही किया था कि नहीं ये जो वाइफ बोल रही सही है, बट ये मेरा कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। मतलब मेरा बचपन से शायद वही एक लाइफस्टाइल रहा है, मुझे वो एक हैबिट हो गया ऐसे। मैम इसमें लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल भी आ सकता है फिर, कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं है फिर भी खर्चा करी जा रहा है। हाँ, तो मगर लॉस ऑफ, देखो ये एक हमको पैसे की या उसके खर्च करने के यहाँ पे तो मिल ही रहा है, मगर और जो उसको ये, अगर इफ यू वांट टू टेक दिस रूब्रिक एज ए लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, तो हमको और कहीं जगह पे भी मिलना चाहिए, और अगर यहाँ पे मिल रहा है तो हमको एक ही जगह मिल रहा है, तो ये इसको हम किस तरह से लेंगे और किस तरह से समझेंगे थोड़ा डीप में। नहीं, और लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल में पहले आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। एग्जैक्टली राइट, यस दैट यू डू। यस यस लियाकत सर, वेरी वंडरफुल। यस, पहले कंट्रोल तो होना चाहिए, तभी बाद में वो लॉस होता है, तब लॉस जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब मैडम ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। अभी उसकी ये सिचुएशन है, इतना फाइनेंशियल क्राइसिस थ्रू वो जा रहा है, 50 लाख का लोन लिया हुआ है, बट उसने बचपन से जो लाइफ उसने रहा है जिस तरीके से, उसको वैसा ही रहना है। अभी जो सिचुएशन है उसको वो समझ में नहीं आ रही है, या फिर उसको समझना नहीं है कि मुझे अभी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। मैं उस तरीके से लाइफ, मतलब इतना मैं ब्रांडेड लेना वगैरह अभी नहीं, ये सब चीजें करनी चाहिए। पहले मैं अपना रीपे कर दूं जो भी फाइनेंशियल डेब्ट है वो। राइट, तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज परफेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज परफेक्ट। इतना विजडम नहीं आया है इसके अंदर। और ये सब के लिए वो सब क्या करता है, वो सब जो छुपाता है, वो मतलब जो क्रेडिटर्स है उसके फोन नहीं लेता है, इसके लिए वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। जैसे उसने वो गोवा का भी बताया ना, जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट आई वुड जस्ट टेल यू कि वो गोवा भी जाता था ना, तो कैसे करता था, लास्ट मोमेंट को टिकट्स निकालता था और चला जाता था। तो बोलता था मेरे टीसीज के साथ में सब सेटिंग्स होती है। तो बोली अरे लास्ट मोमेंट में तुम टिकट मतलब ऐसे ही चले जाते हो, तो तुमको फिर डर नहीं लगता है, टीसी पकड़ते नहीं? तो नहीं, मैं इतना अप डाउन करता था तो मेरा सब टीसीज मेरे को पहचानते थे, उनके साथ में मेरा सेटिंग्स था। जब भी उसने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि वो शायद उसकी वजह से मुझे ये हो गया तकलीफ करके। तो अभी ये क्रेडिटर्स के फोन आएंगे तो भी वो मतलब कुछ झूठ बोलेगा, या वो कुछ भी बहाना कर देगा, या वो फोन ही नहीं उठाएगा। वाइफ को भी मतलब जिस तरह से वो ये करता है, कभी शाउट कर देगा। तो ये सब भी जो चीजें हैं, इसको भी एक अपने को थोड़ा सा ये देखना है। और एक भी लगता है, सॉरी, डिसीटफुल।
ओके मतलब मैम इसका नेचर फ्रिवोलस। मैम लिबर्टिनिज्म भी लगा, इसे इतनी लिबर्टी, इतनी फ्रीडम एक्सेस में इतना ज्यादा कर रहा है ये। यस यस यस, किसी और ने भी जो स्टार्टिंग में बताया था, उन्होंने वो वर्ड यूज नहीं किया था लिबर्टिनिज्म, बट या कहीं ना कहीं वो भाई लिबर्टिनिज्म आप बताइए, बाद में बताते हैं। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ, क्यों लगा लिबर्टिनिज्म? मैम इतना आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे एक लिबर्टी, एक फ्रीडम इज विद इन द लिमिट, जो एक लिमिट में होती है। लिबर्टिनिज्म इज आउट ऑफ लिमिट, ये आउट ऑफ लिमिट जाकर सब चीजें कर रहा है। ही वांट्स, मतलब थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी लगा कि अपना मजा मस्ती बाहर जा रहा है, और एक्सेस में सब चीज लगी, मतलब लिबर्टी को एक्सप्लॉइटेशन लगा एक तरीके से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड डॉक्टर। व्हाट इज योर नेम? I'm डॉक्टर नमिता। डॉक्टर नविता, वेरी गुड। हाँ डॉक्टर नविता, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग भी बता देती हूँ। और किसी को कुछ बोलना है? ओके, रेमेडीज के बारे में बताएंगे, कितने लोगों की क्या क्या रेमेडीज आई हैं अभी? डॉक्टर लियाकत सर ने और आई थिंक डॉक्टर किसने, दोषी किसने बताया, 2 जन ने रेमेडीज बताई हैं। मैम कोई नॉर्मल इंसान होता तो लॉस ऑफ मनी वगैरह के लिए होता, मगर ऐसा लग रहा है कि इनका सब फ्रीडम गुम गया है, ये कुछ ले नहीं पा रहे, पैसे नहीं है अब इनके पास अपने ऊपर खर्च करने के लिए, इसीलिए बीमार पड़े। हाँ, तो इसलिए नहीं बीमार पड़े कि क्रेडिटर्स को देना है या वाइफ को परेशानी हो रही है या कुछ, बस अपनी नहीं हो रही है, इसीलिए ये बीमार पड़े। वंडरफुल वंडरफुल। मम्मी एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिब्रिटी रेमेडीज बताओ। मैम एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिब्रिटी फ्लोरिक एसिड लग रहा था मेरे को। अच्छा, ओके, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी, ओके, ठीक है। और रेमेडीज? फ्लोरिक एसिड, डीडी, मेडोरिनम। मेडोरिनम, ओके। और रेमेडीज सोच रहे हैं कोई? नमस्ते, नमस्ते दी। यस, नमस्ते सर। मुझे ये ओपियम लगा। ओपियम लगा, ओके। इसमें सेंसिटिवनेस नहीं है, किसी के प्रति सेंसिटिवनेस नहीं है। ओके, ठीक है। ओपियम में सेंसिटिवनेस ज्यादा, मतलब काफी सेंसिटिविटी कम है कि पेनलेसनेस है? एक जगह ओपियम के अंदर कई केस में मैंने देखा था कि ओपियम फैमिली के प्रति या अपने परिवार वालों के प्रति, अगर उन लोगों को कुछ होता है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही छोड़ देता है, जाने देता है। ओके। और इसका स्माइलिंग और खुद के प्रति जो बिहेवियर है, उससे मुझे हाई स्पिरिटेड फील हुआ। उससे क्या लगा आपको? हाई स्पिरिटेड लगा कि हाई स्पिरिटेड लगा, वेरी गुड। हाई स्पिरिटेड अभी तक क्यों नहीं आया था, वो मैं भी सोच रही थी कि हाई स्पिरिटेड अभी तक किसी ने क्यों नहीं सोचा। यस, जिस तरह से उसके पेन्स है, उसके बाद में भी ये जो बंदा है जो काफी मतलब ऐसे लाइट है, और जिस तरह से स्माइलिंग है, और जिस तरह से बात कर रहा है अपने सबके साथ में, मतलब जो केस टेकिंग में बात कर रहा है डॉक्टर के साथ में, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। हाई स्पिरिटेड आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताती हूँ आपको। और रेमेडी आई सर आपकी कुछ? आपने एक ओपियम बताया, और कुछ? मैम हेलो, यस मैम स्पॉन्जिया लग रहा है। यस, स्पॉन्जिया एंड मर्क। स्पॉन्जिया, मर्क, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम भी अपना हो रहा है। एंड बट बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। एटलीस्ट पीपल हैव फेल्ट हिम। मुझे वो बहुत अच्छा लगा है कि एटलीस्ट वो एक अंडरस्टैंडिंग आई है अबाउट द पेशेंट। हम आगे जाएंगे और समझेंगे एटलीस्ट द वे आई अंडरस्टूड हिम एंड आई व्हाट आई थॉट अबाउट हिम। एंड लास्ट में कुछ होगा तो हम लास्ट में वापस डिस्कस करते हैं। नहीं सर, नहीं, नॉट स्पाइजुलिया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो ये जब भी few things that I would like to tell just before we reach the actual rubrics and the remedy, that lot of info usually we get, और being a homeopath हम थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत हमको इन्फो मिलता है और बहुत स्टोरीज भी पेशेंट के सामने पास से मिलती है।
So what is it that हमको बहुत जिसको पिन पॉइंट करना है, जिसको हमको पिन डाउन करना है, we have to मतलब take those things in our totality which would help us, which are the keys to prescribe accurately. Okay, so few things that I would like to share with you is कि एक मिनट, मेरा एक सेकेंड. Okay, when we want to treat a patient, it's very important to understand that how he behaves in disease condition. Okay, during disease condition, there is a deviation of the vital force, and this deviation of vital force is expressed at mental state, in his physical generals like his energy levels, vitality, appetite, thirst, sleep, and bowel habits. In some cases, we get a picture which is different than his normal state, and it is advised to consider this deviated state in our totality. This is usually seen in acute diseases, whereas in chronic diseases, we may or may not get clear-cut deviated state, and that is the time we try to understand the patient's basic nature and the characteristics in the case, the characteristics that the patient gives us. Okay, so how do we understand and reach to this characteristics? बहुत बार this question is coming to me from lot of students and learners, and that is why I want to emphasize on this, give this 2 minutes onto this, and tell all my friends that please try and remember this always, which will help you a lot in cracking out any of the cases. This is like a fishing aptitude. If you learn to fish, you will be able to crack down any of the cases. Okay, so ये जब ये full of information मिला या long stories when we get, so that is the time how do we prescribe accurately. So anything that surprises us, anything where you feel that it is not acceptable to you as a physician, where you feel it is not reasonable, where you feel that the conflict and the pathology is not directly proportional, anything that raises question in our mind, okay, there you give importance to. Anything, and you don't leave, don't always take the info of the patient as it is said by the patient. ये patient and wife को क्या लगा कि मुझे किस वजह से हुआ है, कि because of too much of traveling, because of irregular eating habits, अगर हम वही लेके रुक जाते थे तो हम उसके financial losses तक नहीं जा पाते थे, और उसकी बाकी का उसका जो अंडरस्टैंडिंग आता था उसका फाइनेंशियल लॉस का, फाइनेंस की वजह से वाइफ ने जो उसके बारे में बताया अबाउट हिज spending money and all these things, वो हमको नहीं मिलता था. So that is how it is very important to understand all this. So don't always take info as it is said by the patient. It is very important that our mind needs to understand and accept this info as a physician. If not, do question till you find a satisfactory answer. So anything else, which are the other PQRS symptoms, whatever which are unusual, which are contradictory, which are inappropriate, at least pin it down, write it down, or in your mind you pin it down, or write it down in the corner of your paper, and you see to it that you are getting answer to this. Okay, so from this I would like to the final analysis, evaluation of the case and the rubrics that I took it for this case. The first rubric that I felt was a buoyancy. That I felt him very buoyant. That what is buoyancy? The buoyancy means the capacity to float up. Even with the severe pain and the incapacitating arthritis, the patient didn't drown. And that's how there was a big smile on his face. When I entered the clinic also, the way he was sitting, and during the interview, the way he was sitting, then he gave the interview. That time also he was laughing and he was smiling and he was light. Another thing, मुझे लगा था शायद ग्रुप में से आएगा वो light desire या light वाला rubric आएगा. But वो एक feel दिया उसने. That was the feel which was given, which everyone caught was of a light. And if you see then even in the relationships, he remained on the surface. He didn't drown. He had a love marriage, but if you see कि उसका कहीं पे भी वो deep involvement नहीं दिखा, neither with the wife nor with the daughter nor with his other family also, उसके मतलब जो उसके parents या in-laws की कहीं पे भी ऐसे friends के साथ में कहीं पे भी उसका वो ऐसा relationship हमको नहीं मिला. So these are the people who are buoyant.
and these are the people, what is buoyancy, they do not sink in. अगर हम एक पानी के अंदर एक वो बॉल को डालते हैं, प्लास्टिक के बॉल को, एंड वी ट्राई टू प्रेस इट डाउन, फिर भी वो जैसा हाथ लेंगे तो भी वो नीचे जाएगा ही नहीं, वो ऊपर प्रेशर करेगा, ऊपर आने के लिए प्रेशर करेगा, एंड इट वुड कम अप. सो दैट इज हाउ आई फेल्ट, which the group really beautifully came with the same feel. जो फील ग्रुप ने लाया वही फील आया है कि वो इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था उसका, तो वो फील आ गया था. बट द रूब्रिक which I used for this and which we have in our repertory is buoyancy. Yes मैम, ये जो buoyancy है इसको लेमेंस में थिक स्किन भी बोल सकते हैं? नहीं, थिक स्किन अलग है. दिस इज थिक स्किन तो कैसा है कि जिसको मतलब कुछ असर नहीं होता है, जिसकी सेंसिटिविटी इतनी ऐसे हार्ड है कि उसको डेफिनेटली मतलब ऐसा ओके एज ए लेमन टर्म में आप थिक स्किन बोल सकते हो, क्योंकि ये पेशेंट में भी फीलिंग कम है ना, ऐसे देखेंगे तो उसकी वाइफ के लिए, डॉटर के लिए ऐसी फीलिंग नहीं है, तो अनफीलिंग है या हार्ड हार्टेड है, वो भी मतलब उस तरह का देख सकते हो. बट बुoyancy इज समथिंग जहां पे उसको वो छूता ही नहीं है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वो जो पानी में रह के भी वो थोड़ा उसमें वो ड्राउन नहीं होता है. Are you getting my what I am trying to say? Yes ma'am. Okay, then that is why उसका वो जो relationship है वो सब में भी वो उसने मतलब float ही किया. उसकी love marriage थी, but he did not have that deep involvement even with the wife. ऐसे. Second rubric was वो moral feelings want of कि he doesn't he like didn't mind telling lies. उसने अपने क्लाइंट से, वाइफ से, फादर इन लॉ से भी सबके साथ में लाइज बात किया, एंड वो हाइड करता था. he was sometimes abusing and shouting also. he used to travel without tickets. तो ये सब जो था, these are also like all the characters not of the people who have good morals. okay, unfeeling जो मैंने अभी बता दिया, and responsibility, what you people said, it was wonderful, but this was responsibility, inability to take and inability to realize responsibility. इसको यहाँ पे एवर्जन नहीं है, पहले रियलाइज तो होना चाहिए. एवर्जन कभी आएगा? अगर आपको मतलब कहीं रियलाइजेशन होगा तो आप बोलेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता है. एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, समवन इन द ग्रुप हैड सेड एवर्जन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो एवर्जन कभी आता है जब भी हमको वो एवर्जन मतलब वो पसंद नहीं है, डिसलाइक है, हम वो लेना नहीं चाहते हैं, दैट इज एवर्जन. यहाँ पे इसको पसंद की तो बात ही नहीं है, उसको वो समझता तक नहीं है. जिस तरह से ग्रुप मेंबर्स ने बोला कि अरे वो फादर है, हस्बैंड है, उसको समझता ही नहीं है कि इन द रोल ऑफ हस्बैंड हाउ आई शुड बिहेव, इन द रोल ऑफ फादर हाउ आई शुड बिहेव, ये रियलाइजेशन ही नहीं है. एंड जिस तरह से वाइफ ऑल्सो सेज दैट ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज वेस्टिंग मनी, नॉट गिविंग मनी टू हिज वाइफ फॉर द हाउसहोल्ड थिंग के लिए, ही डज नॉट केयर फॉर वाइफ एंड डॉटर, ही इज नॉट सेविंग मनी, ही जहाँ पे रीपे करना है लोन, that time he is spending the money and that too on his own self. And why not realizing his responsibilities कि उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि towards the wife, towards family, towards daughter, towards home, towards repayment, what is his responsibility, what is his role. और वो अपना फोन भी जैसे वाइफ ने बोला स्विच ऑफ करके रख देता है कि जब भी अरे डॉटर आने वाली है स्कूल बस में, तो एज ए फादर कितना रहेगा आपको एज ए पेरेंट कि अरे मेरी डॉटर आने वाली है, उसका स्कूल बस का टाइम हो गया है. अगर वाइफ नहीं है घर पे, अगर वाइफ को मुझे कुछ कन्वे करना है तो कैसे वो कन्वे करेगी, मेरा फोन स्विच ऑफ है, इसको समझता ही नहीं है, ये फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाता है. देन मटीरियलिस्टिक, उसका जो सेल्फिशनेस लगा, जिस लोगों को जो अटैचमेंट लगा, ये क्या है, दैट इज someone also said about materialistic. Yes, his interest into all material things like clothes, shoes, perfumes, belt, इसमें ही वो देता है ना, मतलब वो जो spend करता है वो भी इसी में करता है, branded things में. libertinism, हाँ, कि he doesn't listen, उसको जो करना है अपने मन का करना है. एंड जनरल्स में साइड क्रॉसवाइज, ये भी एक रूब्रिक जो मैंने लिया था, लाइक इफ वी सी कि इसका ये था कि he said उसका he had swelling on the left ankle and the pain in the right knee, ऐसा उसने वो स्पेसिफिकली बताया था और वो था उसके अंदर. So when we took all this rubric and repertorized, the remedy which came was fluoric acid. So all those people who said fluoric acid, congratulations to all of you.
wonderful group and wonderful people, you know, when you are learning this, really thanks to all of you. Okay, so I would tell a little bit about the fluoric acid and how I gave medicine and kya hua. I gave him on the first week 7 powders, usko daily 1 dose every day bedtime ऐसे करके 1 week का दिया. And at the end of first week itself, when he came, na, he was like, there was a change on his face. There was a meaning aisa shine on his face, and the way you felt was he himself said he's feeling much better. From within, he started feeling better. He said, "Mujhe acha lag raha hai." And he had a very peaceful sleep, very deep sleep. This was the first thing. Even his pains were less. In the first week itself, he was better, and in his pains also, in his walking and in his gait, thoda uska improvement start hua tha. So because of he was better in the first week, मैंने उसका doses immediately second week में reduce कर दिया. See, but I knew at the back of the mind कि कितनी deep pathology है, and ऐसे नहीं होगा कि so because of that I had my understanding कि he will require few doses. ऐसे नहीं होगा कि वो अभी 1 week दिया है तो अभी मैं उसको सिर्फ SL पे रख दूं. So that is why then I reduced the doses from 7 powders to 3 powders HS, 3 doses bedtime. और उसके बाद वाले वीक में तो मैंने उसको वीकली कर दिया था. और by that time like within से 3-4 weeks के अंदर तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि बहुत ही अच्छे से वो वॉक करता था. उसके बिल्डिंग में लोगों ने नोटिस करना चालू कर दिया, उसकी इनलॉज ने नोटिस करना चालू कर दिया. पेशेंट की वाइफ आके बोलती है, उसकी फ्रेंड्स वगैरह जो बिल्डिंग में रहते थे उन्होंने बोल दिया कि अरे इसमें बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है. And the patient really was feeling very fresh. Uski jo stiffnesses the of all the joints that started reducing. He started getting some itching on his skin also, which came and which went away. But he started getting that for some time, and he used to have very good sleep. He used to feel very fresh. Uska jo heel ka ankle ka jo pain tha and swelling tha, वो swelling थोड़ा सा कम हो गया. बाकी के उसके जो जॉइंट्स थे ना वो भी कम हुए. आफ्टर अबाउट से 1.5 month की 2 months में बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया, बहुत क्विक. उसके बाद वो ड्राइव करके बड़ौदा तक लेके गया कार. ही यूज्ड टू ड्राइव अप टू थाने फ्रॉम, ही वाज स्टेइंग इन दहिसर, सो दहिसर से थाने वो ड्राइव करता था. ही ड्रोव फ्रॉम मुंबई टू बड़ौदा एंड ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ वेरी कंफर्टेबल. तो जैसे हम बोलते हैं कि जब भी when the remedy is very similar, the type of results that you get वो बहुत ही characteristically मतलब बहुत they are really wonderful. As a homeopath we always love to see this type of results, and that is what happened in this case also. Okay, so friends, I would also like to share one of my another experience which I had when I had attended the Hope for Hopeless camp of Dr. Vijayakar sir. Okay, यहाँ पे ऐसा हुआ था कि there was one patient who was like mentally challenged patient था. उसको उसके father लेके आए थे clinic पे, and he was 30 years plus का male patient, mentally challenged. And what information that patient's father gave that he is married and he is having a children, ऐसे मतलब उसके information history में मिले थे. So Dr. Vijayakar sir had prescribed him fluoric acid on the basis of these few characteristics. जो उन्होंने देखा कि वो जब भी पेशेंट को लेके सर के सामने मतलब लाके रखा, सर बैठे हैं, वो एक टेबल था उसके सामने की साइड सर बैठे, यहाँ पे पेशेंट खड़ा है और टेबल के ये साइड में यहाँ पे और एक डॉक्टर ऑल्सो इज सिटिंग. बहुत सारे डॉक्टर्स थे, तो देयर वाज सम फीमेल डॉक्टर. तो ये पेशेंट जो यहाँ पे खड़ा है, लाइक द वे ही वाज लुकिंग एट दिस फीमेल डॉक्टर हु वाज सिटिंग ऑन राइटिंग समथिंग, वो डॉक्टर विजयकर सर ने बोला कि द वे ही फाउंड यू नो दैट देयर वाज सम ऑगलिंग इन हिज साइट, इन हिज, जिस तरह से वो देख रहा था वो. एंड ही कोरिलेटेड टू थिंग्स, ये मेंटली चैलेंज्ड है फिर भी उसके पेरेंट्स को उसका शादी करवाना पड़ा. यूजुअली मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन के पेरेंट्स जल्दी से शादी नहीं करवाते बिकॉज दे कैन नॉट टेक अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपनी फैमिली की कैसी करेंगे, और ही हैड चिल्ड्रन. तो उसको वो समझ थी, मतलब वो पता था या वो समझ थी जो उससे उसको
मतलब he also had children and he was ogling. ये दो चीज मतलब देख के ये correlate करके सर ने उसको फ्लोरिक एसिड दिया था. Just wanted to share. Yes. Yeah, so I just wanted to share this experience also. You know, whenever I feel कि वो फ्लोरिक एसिड आता है तभी मुझे ये शेयर करने को अच्छा लगता है. So just sharing this experience of mine. I would share floric acid in short, in small, just in a 5 minutes with you people, little bit. That see, floric acid is a strong and inorganic acid from the mineral kingdom, right? And it is an antisyphilitic remedy. Okay, floric acid is a prematurely old looking individuals, and usually we see that males with increased sexual erotism. Its sphere of actions अगर हम देखते हैं तो bones, teeth and skin पे ज्यादा है because of the fluorine element in it. अगर ailments from अगर देखते हैं हम floric acid के तो then ailments from is syphilis, abuse of mercury, debauchery, grief, physical and mental exertions, loss of sleep. And unlike the other acids, there is no weakness in floric acid. So even जैसे हमने हमारे पेशेंट में भी देखा कि पेशेंट को इवन विद डीप पैथोलॉजीज उनमें इतना वीकनेस नहीं दिखेगा. इवन दो देयर इज अ वीकनेस इज अ क्वालिटी ऑफ एसिड्स जो आपको बाकी के एसिड्स में दिखेंगे, फ्लोरिक एसिड में नहीं दिखते हैं. Buoyancy and smiling, even if scolded or even if they are in deep pain, they are always happy. And this is the quality of because of their buoyancy quality, because they are buoyant. This is what happens in the floric acid. Then there is no attachment and no anchoring of emotions to family members. They are emotionless, unfeeling, libertinism. This is moral feeling, want of flirting, ogling, looking at women on the street. This is what we find in the Materia Medica and in the repertory rubrics. Okay, the responsibility, inability to take. अगर हम अपना मटीरिया में भी देखते हैं तो they have given exact these words: inability to take up the responsibilities. There is no fear of responsibility, there is no aversion to responsibility, but it is inability to take. Aversion to his own family, indifference towards loved ones. ये ग्रुप में से भी किसी ने बताया था. Fears that nothing, and well satisfied with his inner self. जो किसी को जो सेल्फिश का जो फील आता है कि वो एक सेल्फ के साथ का ही उनका जो अटैचमेंट का. थर्मली दे आर वेरी हॉट. अनलाइक द अदर एसिड्स, ऑल अदर एसिड्स आर चिली एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड. द बोन्स में अगर हम देखते हैं तो देयर इज अ डिस्ट्रक्शन, इरोजन, necrosis and caries at the level of pathology. The discharges are acrid, offensive and excoriating. Okay, अगर हम keynotes देखते हैं फ्लोरिक एसिड की तो they are also saying that the floric acid is usually not refined and they are crude, materialistic. They live to enjoy life, not bothered about awareness, discipline, inability to realize responsibility. They are domineering, they are selfish, they are insensitive and aggressive. They are generous and materialistic plane. Generous on materialistic plane. No deep feeling or on emotional plane. No real contact. Aversion or indifference to loved ones and family. Strong anxiety about health. Fear of suffering, but endures it well. They are hurried, depression, strong sense of isolation. ये जो है ना, they have like indifference towards the loved ones, but they are having a good relations with the other people in the society. ऐसे भी देखा गया है कि family के साथ में नहीं होता है, but with others they do have. Then they have some more keynotes are impulse to walk fast, the necessity to be on the move, lasciviousness, ogling the women as they pass by, so great is his lust. एवर्जन टू, अगर ये पेशेंट में हमको सेक्सुअल ये डायरेक्ट नहीं मिला था, मतलब मे बी वो इंक्वायरी भी नहीं हुआ है और जो मिला है उसके अंदर भी हमको वो नहीं मिला है. सो समटाइम्स अगर हमको सेक्सुअल स्फीयर मिल जाता है तो इट इज इजी टू क्रैक अपना ये फ्लोरिक एसिड. बट व्हेन वी आर नॉट गेटिंग सेक्सुअल स्फीयर फ्रॉम द
हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ नेटवर्क की। मैडम के यहाँ से कुछ हुआ। हाँ हाँ पॉज कर दीजिए रिकॉर्डिंग तब तक। जस्ट अ मिनट सर, शायद वाईफाई आया है, एक सेकेंड कर सकती हूँ वापस ज्वाइन सर, 2 मिनट्स। आराम से करिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके ओके, हाँ सर, हो गया ज्वाइन। Am I audible? Yes ma'am. Yes. Sorry friends, कुछ तो I'm इंटरनेट doing so थोड़ा सा sorry. चला गया। थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ वापस से, मुझे को होस्ट बना दीजिए। मानसी, हाँ, yes ma'am. Yeah, can you see this? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. तो जो बात कर रही थी कि aversion to his own, to the loud ones, but he was interested in versus isn't a stranger. Internally, he feels isolated and often anxious. His inability to realize his responsibility, insanity with reticence and silence, fear of suffering, materialistic, domineering, libertinism, preoccupied with fulfillment of his sexual cravings, indifference to business affairs, and irritability sends nurse home. So इतना वो materialism है, जब भी वो sense of responsibility नहीं है, so because of that, self के साथ का ही इतना attachment है कि he is not able to have that responsibility towards his loved ones, or no attachment also towards the loved ones. So this is what it was. Thank you very much friends, thank you very much. Thank you HSH. मैडम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, there is one rubric, hatred absent persons better on seeing them off, single fluoric acid. hatred absent persons better on seeing them, single better on fluoric seeing acid. them. Okay, but देखो that, so what is your question? What is your question? I want to understand that rubric. What does that mean? See, ये rubric of course ये patient में नहीं apply होता है. This means there is a hatred towards some person who is absent, but he feels very happy. मुझे याद है, I remember that there was one friend of mine who had once shared one case of fluoric acid when we were discussing about fluoric acid. तो उसके वो केस में ये rubric apply हो रहा था, मेरे केस में ये apply नहीं हो रहा है. But आपके केस में नहीं, सिर्फ फ्लोरिक के साथ सिंगुलर रुब्रिक है, so I just wanted to know. हाँ, तो वो ऐसा, मतलब वही मैं बता रही हूँ कि वो possibly that means कि वो जो patient है, he is having some attachment to someone in his mind, but जब भी वो patient को देखता है तभी उसको इतना खुशी नहीं होता है. If you are having some attachment in your mind to someone, वो जो at least I will share with you that the case of one of my friend, little bit of it what I know. After that Dr. लियाकत sir can help us अगर उसके अंदर डिटेल में, but I just know वो patient में ऐसा था कि वो patient है ना, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, तो for some reason वो उसका ब्रेकअप हो गया था, तो वो उसके माइंड में he used to think about his girlfriend, और for quite some time they did not have any much contact between the two of them. But after quite some time जब भी वो friend उसको वापस मिली थी, तभी भी उसको वो गर्लफ्रेंड को मिलके इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना उसको, मतलब ऐसे था कि अगर उसको वो इतना अगर मिस कर रहा था या उसको इतना अगर रिमेम्बर कर रहा था, तो उसको जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं आई थी. And that is how that doctor had applied this in her case. अच्छा, okay. अगर लियाकत सर और कुछ बोलना चाहेंगे तो if he can help us out. The problem is acid floor is he doesn't have real connect with people. Okay, everybody is a matter of pleasure for him. तो ये जो होता है ना, it's a rubric very close to hypocrisy. Actually, this is why acid floor is not there in hypocrisy.
they are a little bit ahead of they are solid hypocrites. I have also got many friends who I have treated with acid floor. They are like this only. उनका कुछ होता है जो होता है ना, they are very close to phosphorus. What I have seen, phosphorus जब relationship से detachment में जाता है ना, तो anguish में जाता है. phosphorus के बाद में phosphorus का compassion वापस आता है. Whereas acid floor में ये नहीं होता है. तो उसमें वो हेटेड वाला जो रूब्रिक है ना, वो सामने आने के बाद में वो एकदम दोगले की तरह उसके साथ में बताएगा कि यार ये आ गया. तो many times we confuse acid floor with hypocrisy rubric due to this. Yes. Okay, sir. Sir, इसीलिए someone from the group also said about the thick skin. इसको thick skin बोल सकते हैं. And that is definitely, अगर हम calcarea floor देखते हैं तो उसमें भी वो फ्लोरीन एलिमेंट की वजह से हम जो उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं, तो वहां पे हमको वो थिकनेस मिलता है. And that is exactly यहाँ पे ये फ्लोरिक एसिड में अगर हम देखेंगे, पॉसिबली कैलकेरिया फ्लोर में हमको फिजिकल लेवल पे थिकनेस ज्यादा मिलता है, जबकि फ्लोरिक एसिड में हमको मेंटल थिकनेस ज्यादा मिल रहा है. बिकॉज वो अनफीलिंग, हार्ड हार्टेडनेस, और सो मेंटली अगर हमको लगता है यार ये मेंटली थिक स्किन वाला है क्या, मीनिंग वो जो डॉक्टर को वो फील आया था कि ये थिक स्किन है कि क्या. दिस इज व्हाई अगर आप सिलिशा को लोगे, सिलिशा में एक रूब्रिक है एंजाइटी हिमसेल्फ अबाउट. This is the reason why acid floor and Silisha are complementary. In many cases, you feel that. Yes. हाँ, सिलिशा भी वो रेती है ना फाइनली. Right. Yes. Thank you, Liaquat sir. Thank you very much, Liaquat sir. Thank you, Ashok Avadia sir. Thank you, HSH. Thank you, Mansi. और डॉक्टर कौन है, मनीषा, डॉक्टर वैशाली राठौड़. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैडम. और किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो लास्ट में पूछ लो, बट अदरवाइज रियली मैम. अशोक सर. हेलो. यस, बोलिए. किसी someone wants to ask. Yes मैम एक रूब्रिक मेरे को समझ नहीं आता जनरली केसेस में. मैम आयरनी को कैसे वर्जन होगा पेशेंट का? आयरनी में आयरनी रूब्रिक होता है ना. आयरनी आई थिंक कुछ केसेस होगा तो वो डिस्क्राइब करना इजी होगा. वो मैम समझ नहीं आता मैम. मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा वो हाई स्पिरिटेड किसी ने बताया था, वो एक डिफरेंट लियाकत सर ने पहले बताया कि कंट्रोल लॉस ऑफ में पहले कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए फिर लॉस होना चाहिए. वैसे हाई स्पिरिटेड में भी तो वो अपना स्पिरिट्स को कहीं ना कहीं हाई करते हैं, मगर थोड़ा उसके लिए पहले स्पिरिट्स थोड़ा डाउन जाता है तो वो अपने आप को हाई स्पिरिट्स करता है. जैसे कार्सिनोसिन में है या हायोसाइनस में है, वो मतलब अगर हम देखते हैं इन द केसेस ऑफ कैंसर एंड ऑल, तो उनको जब भी समझता है कि उनको कैंसर हुआ है तो वो जिस तरह से दे रियली मेंटली फील डाउन एंड देन वो अपनी स्पिरिट्स को हाई करते हैं, खड़े होते हैं एंड देन दे आर रेडी टू फेस द सिचुएशन. जबकि फ्लोरिक एसिड में मतलब ये मुझे बोयंसी के साथ में डिफरेंशिएट करना था, तो बोयंसी में ऐसा है कि वो सिंक ही नहीं होता है, वो फ्लोट ही करता है. वो सिंक ही नहीं करता है तो उसका अटैचमेंट ही कहीं पे नहीं हो पाता है. जबकि हाई स्पिरिटेड में कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डीप जाता है और फिर अपने स्पिरिट्स को हाई करके ऊपर आता है. और हाई स्पिरिटेड वाला बंदा अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी स्पिरिट हाई करता है. आयरनी वाला ताने मारे, व्यंग करेगा. आयरनी वाला कैसा होता है ना, मतलब गरीब है, मिठाई खा नहीं सकता, अभी पैसा आया मिठाई है, बट डायबिटीज हो गया. आयरनी इज फेट. आयरनी इज द एंड एक्चुअली. आयरनी जो हम लोग मराठी में उसको एक वर्ड है शोकांतिका, है ना. आयरनी द एंड, लाइक जो आप सोचा था क्या क्या हो गया. जैसे कि कोई बंदा एकदम ही जैसे अभी बहुत ही जो बंदे ने हार्डशिप की लाइफ जीने के बाद भी जब उसके अच्छे दिन आते हैं तब उसको आपको पता चल जाता कि उसको ऐसी कोई बीमारी हो गई कि वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, या फिर उसकी हाल अपेष्टा होगी, उसकी मृत्यु होगी. आप समझ रहे हो ना. मतलब आयरनी आपको फील करना होता है. उसके अंदर टलका मारा है, शायद कालीफॉस है, स्पॉन्जिया है.
उसके अंदर आप एक ऐसी जिंदगी जीते हो कि जिसमें आप बहुत डिफिकल्टीज, बहुत मुश्किलात, बहुत कुछ एक अच्छी सी चीज का एक मकसद लेकर चल रहे हो, एंड देन यू फाइंड कि यार कैसा अंत हो रहा है मेरी जिंदगी का। वो आयरन में आपको दया आती है। वो मराठी में एक पिक्चर आई थी माहेरची साड़ी, अगर आपने वो देखी होगी ना, वो काफी लैंग्वेजेस में हुई थी वो पिक्चर ट्रांसलेट, वो आप देखिए, उसके अंदर आपको आयरनी का बहुत एग्जैक्ट समझ में आएगा। ओके, मतलब वो चीज एकदम एंड में मिलती है जो बहुत उसने डेस्परेटली चाहिए थी, जब उसका एंड आने लगता है। नहीं, हाँ, उसको चीज मिलती है या उसका गोपीनाथ मुंडे जी, किसी को याद होगा, या फिर आप लाल कृष्ण आडवाणी साहब की लाइफ को ले लो अभी, कि उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया और आज उनकी जिंदगी देखो कैसे हो रही है। द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सो मिजरेबल। लाल कृष्ण आडवाणी जी का अगर आप पूरा लोगे हिस्ट्री, जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पार्टी को खड़ा किया और बहुत मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वो पार्टी को दे दी, और उनका अंत देखो अभी कितना बुरा हो रहा है। एज इन ये चीज जब आप थोड़ा देखो, दैट इज आयरनी एक्चुअली। या फिर बहुत से लोग हैं यार, आप सोच सकते हो जिनको बहुत ज्यादा एकदम इसमें आप जिए, आपने एक बहुत डेडिकेटेडली कोई काम किया और आप जीवन का अंत एकदम मिजरेबल होता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आप क्या करो, आप इग्नाइटेड माइंड ग्रुप्स पर आपको जो मुश्किल रुब्रिक्स लगे हैं वो रुब्रिक्स डालो, तो दूंगा मैं, ठीक है? Right. Telegram is a wonderful platform to learn and solve the queries. जरूर Zoom मीटिंग रखेंगे। Okay, it's a problem. Yes, very good. Okay sir, okay. थैंक यू मैम। आप म्यूट हो गए सर वापस। ये हो गए सर, म्यूट हो गए। लियाकत सर आप म्यूटेड है। सेफली ड्राइव करिए, सेफली ड्राइव करिए। अरे शिट सॉरी, नहीं, मैं अभी एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ, अभी वापस एक वुमेन्स डे का प्रोग्राम है, उधर जा रहा हूँ। सेफ ड्राइव, टेक केयर। फ्लोर विजयकर सर की बहुत फेवरेट रेमेडी थी, मैंने विजयकर सर को बहुत बार प्रिस्क्राइब करते हुए देखा था। आपकी जो पीठ के मसल होते हैं ना, बैक के मसल जो आपके स्पाइन के दोनों तरफ होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रेक्टस स्पाइनिस, उसको ना विजयकर सर पीछे से पकड़ते कमर के ऊपर और बोलते थे अगर वो सख्त रहा तो इसका सेक्सुअल ड्राइव बहुत ज्यादा है, इसको एसिड फ्लो दो। आई रिमेम्बर विजयकर सर दीज वर्ड्स, used for sex and he would give acid flow. It was one of his favorite remedies. I remember, we miss him very much actually. I remember it. Chalo, thank you. Shobna, thank you. It was wonderful. Thank you sir. Thank you very much sir. God bless you. Yes, thank you sir. Thank you very much. Ashok sir. Thank you दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ है नहीं, पूरा क्लियर हो गया एसिड फ्लोर बहुत अच्छे से। तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो बोलूं कि समझ नहीं आया, बहुत अच्छे से समझ आया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक्स टू आवर टीम, मानसी दीदी, प्रियंका दीदी और सभी मेंबर जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सबको बहुत। डॉक्टर मानसी मैम मेरे को वहीं पे मिली थी, डॉक्टर अपना विजयकर सर के हमारा एक कोर्स था जो हमने दोनों ने साथ में किया था, तो शी हैड बिकम माय फ्रेंड एट दैट कोर्स, और वहाँ पे डॉक्टर विजयकर सर ने भी फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छे से लिया था। मानसी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग। यस मैम, यस मैम। अब लियाकत भाई बुलाएंगे नासिक। हाँ जरूर। अभी सब लोग अशोक की आवाज सुन लो, वो जिस तरीके से बात करते